Hello friends, so let's see the one of the important topic from our toxicology subject, that is nothing but our snake topic. So today here we will discuss the snakes, or you can say classification of snakes, venom or clinical features, sign and symptoms of that particular individual जो family wise हम classification करेंगे, and after that if they bite then what will be the management of that. So management, from the starting to management we will see in this particular class. So let's see the our particular today's class with starting with difference between the poisonous and non-poisonous snakes. As you all know, there are more than 5,000 species of, or you can say more than 5,000 variety of species of snakes present globally. And out of that 500 जो species है हमारे वो poisonous in nature के रहते हैं. तो poisonous and non poisonous का categorization तो हम करेंगे ही. Along with that you should know कि 4 more dangerous poisonous snakes in India: common cobra, crate, Russell viper and saw scale viper. Okay, I will again repeat: common cobra, crate, Russell viper and the fourth and last one is that is nothing but saw scale viper. Okay, तो इसी को अल्टीमेटली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या इनका क्लिनिकल फीचर होता है एंड व्हाट दे साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द difference between the poisonous and non-poisonous snakes. The poisonous snakes had their triangular head, fangs, but non-poisonous have their round shape head. Poisonous जो snake रहते हैं they have a triangular head, round shape head. Pupil elliptical shape होता है, pupil rounded shape होता है. यहाँ पे pit present होता है, यहाँ पे pit absent होता है. And if the poisonous snakes, if they bite, definitely they produce a 2 fang marks. Okay, they produce a 2 fang marks or 2 bleeding hole. Okay, so what I want to say here कि poisonous snakes अगर bite करेगा definitely they produce a 2 fang marks pattern, and if the non poisonous snake they bites they produce a U shape pattern. Okay, don't worry, we will see the U shape and 2 fang marks individually in the further slides. And poisonous snakes has polypeptide and procoagulants enzyme in their saliva, and non-poisonous snakes is non-toxic, or you can say non-poisonous snakes they do not have any toxic agent in their saliva. Okay, so you can see here a kind of this is a fang. Okay, what if they bite, definitely this fang ये जो fang है ना इसी का marks ultimately human being पे या फिर human body के ऊपर रहता है. ओके, दिस इज अ फैंग, और इसी फैंग के अंदर इनका वेनम कैनाल होता है, और इसी पर्टिकुलर वेनम कैनाल ये कहाँ से प्रोड्यूस है, दिस प्रोड्यूस बाय अ पॉइजनस ग्लैंड. ओके, तो पॉइजनस और यू कैन से वेनमस ग्लैंड, ये वेनमस स्नेक्स दे हैव अ वेनमस ग्लैंड, दिस इज द वेनम कैनाल एंड दिस टोटली इज कॉल्ड एज अ फैंग. ओके, तो ये देखिए फॉक टैंग है, ये जो टंग अगर बाहर निकलता है ये स्नेक डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड द फॉक टैंग. ओके, तो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ वेनमस स्नेक्स. लेट्स सी द अदर डायग्राम एज वेल. दिस इज द फैंग. ओके, दिस इज अ डक्ट यू कैन से, और जस्ट मैंने आपको बताया कि जो वेनमस कैनाल है. अदरवाइज ये देखिए ये फैंग मार्क है, इसी फैंग मार्क में एक कैनाल होती है, इनकी वेनम कैनाल होती है, और जो कि कैरी फ्रॉम हुई रहती है फ्रॉम देयर ग्लैंड. ओके, तो टीट लाइक पैटर्न होता है, बट डेफिनेटली ये फैंग इन्हें बोलते हैं, और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इरेक्ट भी होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इज अ काइंड ऑफ फैंग. ओके, कंप्रेशन मसल होता है, जैसे ये कंप्रेस होगी definitely they produce a venom, and that venom is carried into this canal, and ultimately ये canal जैसी वो kind of fang जैसी वो kind of insert करेंगे ना into the body, into the human body, definitely ये जो venom होगा ना, ये जो venom है ना, ये human body के blood stream में पहुंच जाता है. ओके, अगेन ये टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, जस्ट मैंने जो डिस्कस किया वही यहाँ पे लिखा गया है. ये टेक्स्ट बुक का स्लाइड यू कैन से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. तो टेल में भी राउंडेड रहता है इनका, जो वेनमस स्नेक्स की जो टेल होगी राउंडेड होगी, यहाँ पे राउंडेड भी हो सकती है, फ्लैंटेड भी हो सकती है, बट नॉन वेनमस स्नेक्स का ऑलवेज राउंडेड होगा. बिल स्केल और ब्रॉड होगा, बिल स्केल और स्मॉल्स. हेड यूजुअली ट्रायंगुलर इन शेप, हेड यूजुअली राउंडेड और ओवल शेप. ओके, सलाइवा कंटेंट टॉक्सिक एजेंट सच एज पेप्टाइड्स एंड एंजाइम्स वगैरह, बट नॉन वेनमस स्नेक्स और नॉन पॉइजनस स्नेक्स दे डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक agent into their saliva. Okay, at least one pair of teeth in the upper jaw is modified to form a fang which may be grooved or channelized. So that what you have to remember कि they produce the 2 fang marks and they produce a U shape pattern. Okay, so first of all let's see the classification of snakes. So snakes are classified into 3 types: Elliptidae, Viperidae and Hydropidae. Elliptidae में common cobra, crate आता है. वाइपरिडे में कॉमन हमारे रसल वाइपर आएगा, एंड सॉ स्केल वाइपर आएगा, पिट वाइपर भी वगैरह रहता है. हाइड्रोपिडे में हमारे जितने भी जो एक्वेटिक जो पर्टिकुलर स्नेक्स होते हैं, पॉइजनस एक्वेटिक जो हमारे यू कैन से स्नेक होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोपिडे फैमिली में आने वाले स्नेक. ओके,
तो वन बाय वन क्लासिफिकेशन देखते हैं और उनके क्या क्लिनिकल फीचर्स वो प्रोड्यूस करते हैं, वी विल ऑल्सो सी दैट। तो कॉमन कोबरा फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। कॉमन कोबरा की आप फीचर जानते हो कि दे एक्सपांड देयर नेक बाय द एक्सपांडिंग देयर रिब, ओके, एंड दे फॉर्म अ हुड। तो ये जो है ना, ये जो अपीयरेंस है ना, इन्हीं को हम हुड अपीयरेंस बोलते हैं। whenever you will find a common cobra, definitely you will find in this we can say, okay। तो कॉमन कोबरा आपको ऐसे मतलब पर्टिकुलरली बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा, दे ऑलवेज फाउंड इन द काइंड ऑफ यू कैन से हुड लाइक पैटर्न, ओके। दिस इज द हुड ऑफ द कॉमन कोबरा, ओके। ये कैसे फॉर्म हुआ? बाय एक्सपांडिंग द रिब दे प्रोड्यूस द हुड लाइक पैटर्न, ओके। सो इंडियन नेम इज नाग एंड दे प्रोड्यूस द येलोइश डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर वेनम, ओके। हुड शेप इनका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉर्मली इनकी फीचर्स हैं 5 to 6 फीट का होता है, एंड दे इंजेक्ट एज वेल एज स्पिटल वेनम, ओके। तो कॉमन कोबरा की फीचर्स, कॉमन कोबरा एंड क्रेट नेक्स्ट दे बिलोंग्स इन फ्रॉम द फैमिली ऑफ इलेपिडे। इलेपिडे अल्टीमेटली हम कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं पता है क्या? इलेपिडे वाले जो स्नेक्स है ना, ये न्यूरोटॉक्सिक एजेंट जो इनका वेनम होता है ना, द वेनम हैज़ अ न्यूरोटॉक्सिक एजेंट, ओके। एंड जो वाइपरेडे वाले जो फैमिली है दे हैव अ हीमोटॉक्सिक एजेंट। एंड जो हमारे हाइड्रोफिडे जो फैमिली वाले जो स्नेक्स हैं उनके वेनम में अल्टीमेटली मस्कुलोटॉक्सिक एजेंट या फिर साइटोटॉक्सिक एजेंट रहता है, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो कॉमन कोबरा बिलोंग्स फ्रॉम अवर हेलिपेडे फैमिली एंड दैट कम इन द न्यूरोटॉक्सिक स्नेक कैटेगरी एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ न्यूरोटॉक्सिक इन इट, ओके। तो इंडियन नेम नाग बोलते हैं। दे प्रोड्यूस न्यूरोलॉजिकल फीचर्स सच एज प्रोटोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, डिप्लोपिया, डबल विजन, ड्राउजीनेस, सीवियर पेन, no bands over the body. You will not find any bands like as you can say a Russell Viper or like as our crate, okay. You will not find any bands over the common cobra, okay. Permanently erect fangs and fit into the grooved slot in buccal floors, okay. You will always find कि जो कॉमन कोबरा होती है ना, दे हैव काइंड ऑफ मतलब वो जो उनका टंग होता है बाहर वो हमेशा निकालते रहते हैं। जो भी मैं आपको बताया कि फॉक टंग जो रहता है वो हमेशा बाहर निकालते रहते हैं। एंड अलॉन्ग विद जो उनकी फैंग होती है ना, आपको जब इनका अगर काइंड ऑफ जो स्नेक को पकड़ने वाले रहते हैं, स्नेक कैचेस जो होते हैं, अगर आप उनसे अगर कॉमन कोबरा की अगर माउथ को ओपन करने बोलेंगे तो डेफिनेटली उनके पास फैंग्स को प्लेस करने के लिए कोई स्लॉट नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी स्लॉट फॉर द, ये देखिए, हाँ यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे इनके पास स्लॉट होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो बेंडिंग होती है ना, काइंड ऑफ पर्टिकुलर जो बेंडिंग होती है ना, जैसे कि रसल वाइपर में मैं आपको बताऊंगा कि जो फैंग होता है ना रसल वाइपर का, वो बेंड कर सकते हैं। उनका जो काइंड ऑफ जो फैंग है, दे कैन बेंड देयर फैंग्स, बट डेफिनेटली जो कॉमन कोबरा है दे डू नॉट एबल टू यू कैन से बेंड देयर फैंग, ओके। तो परमानेंटली इरेक्ट फैंग होता है एंड फिट इनटू द ग्रूव्ड स्लॉट इन द बकल फ्लोर, हैव अ न्यूरोटॉक्सिक एजेंट इन देयर वेनम, जैसे मैंने आपको बताया। अगेन ये एनिमेशन रिपीटेड हो गया है, ओके। तो कोबरा स्नेक्स ऑल्सो कंटेन द हीमोटॉक्सिन अलॉन्ग विद द न्यूरोटॉक्सिन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। हीमोटॉक्सिक एजेंट भी रहता है अलॉन्ग विद द न्यूरोटॉक्सिन। तो न्यूरोलॉजिकल फीचर्स को प्रोड्यूस करेंगे ही, ऑलवेज दे प्रोड्यूस अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ हीमोटॉक्सिक फीचर्स सच एज ब्लीडिंग है, इन्फ्लेमेशन है, ओके। किंग कोबरा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेनमस स्नेक्स विद मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर, जैसे मैंने आपको बताया। कोबरा एंड मामास लिफ्ट इंफीरियर बॉडी पार्ट्स एंड एक्सपांड द हुड्स, ओके। ये देखिए क्रेट है, ये ऑलवेज यू विल फाइंड ये ऐसे काइंड ऑफ अपने आप को छुपा के मैनर में रहते हैं, ओके। दे ऑलवेज हाइडेड इन मैनर, ओके। इंडियन नेम सूर्य कंदार वगैरह बोलते हैं। हेक्सागोनल स्नेक स्केल्स वगैरह इनके बॉडी के ऊपर रहता है। दिस इज अ हेक्सागोनल स्केल्स, ओके। एंड वाइटिश येलोइश सर्कुलर बैंड्स इनके ऊपर रहता है, आप ये देख सकते हो। वाइटिश येलोइश सर्कुलर बैंड्स आप ये देख सकते हो कंटिन्यू इनके बॉडी के ऊपर फ्रॉम देयर नेक टू द टेल इनके पास रहती है। एंड अ काइंड ऑफ नॉक्चुरनल ये होते हैं, दे ऑलवेज यू कैन से बाइट इन नॉक्चुरनल मैनर और नाइट इन, ओके। तो नॉक्चुरनल 3 to 5 फीट होते हैं, ये हमेशा रात में निकलते हैं। नॉक्चुरनल तो 3 to 5 फीट आपको ही मिलेंगे। कॉमन क्रोड के बारे में टेपरिंग हेड होता है, टेल इज शॉर्ट एंड राउंडेड होता है, आईज आर रादर स्मॉल विथ राउंडेड, ओके। एंड ऑफन हाइड्स इन रॉडेंट्स होल्स, लूज सॉइल्स और बीनीथ डेब्रिस वगैरह। दे ऑलवेज कॉइल टू कंसील हिज हेड, ओके। दे ऑलवेज कॉइल टू कंसील हिज हेड, बिकॉज कोई भी पर्सन क्या करेगा उनके हेड पे ही हिट करता है, एंड दैट्स वाई दे ऑलवेज फाउंड इन कॉइल्ड मैनर टू कंसील हिज हेड, ओके। At night time, this snake is active and escape by hissing sound, occasionally bite the source of annoyance, okay. Feeding, it feed primarily other snakes and that's why they produce the venom. You should know कि snake produces their venom, और जो उनका वेनम फॉर्म होता है ना बहुत ही एफर्टली फॉर्म होता है, ओके। यानी कि जब भी चाहे वो वेनम वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। टू किल देयर प्रेडेटर, जिनको उन्हें खाना है उसको मारने के लिए दे प्रोड्यूस द वेनम,
उनका प्राइमरी एम नहीं होता है कि किसी को बाइट करके मैं वेनम प्रोड्यूस करूँगा और उसको मारूंगा. जिनको खाना रहता है, फॉर दैट दे आर इंजेक्टिंग देयर वेनम इनटू दैट बॉडी. ओके, बिकॉज दे हैव अ वीक डाइजेस्टिव कैपेसिटी और उनकी डाइजेशन में कोई ऐसा डाइजेस्टिव जूस वगैरह इतना सीक्रेट नहीं होता है. दैट्स वाई दे हैविंग अ वीक डाइजेस्टिव कैपेसिटी और वीक डाइजेस्टिव पावर. दे प्रोड्यूसेज अ और यू कैन से उनके वेनम में ही यू कैन से पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन वगैरह को डिसइंटीग्रेट करने वाले बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह रहते हैं. तो जैसे ही किसी को किल करेंगे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है और डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होने के बाद बॉडी जब डिसइंटीग्रेटेड मैनर में रहेगी तो उनको डाइजेशन करने के लिए बहुत ही ईजी होता है. ओके, तो दैट्स वाई दे आर यू कैन से बाइटिंग देयर वेनम. अदरवाइज उनका कोई एम वगैरह नहीं होता है. फीड प्राइमरली अदर स्नेक्स. ओके, कॉमन कोबरा वगैरह और रैट वगैरह को खाता है और जो हमारे क्रेट वगैरह होते हैं वो दूसरे स्नेक्स को खाते हैं. तो न्यूरोटॉक्सिन कंटेन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन अफेक्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ओके, यू ऑल नो दैट कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को नॉर्मली अफेक्ट करने वाला है. रेस्पिरेटरी फेलर, सफोकेशन वगैरह ये कॉज करते हैं. विक्टिम कंप्लेन सीवियर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स और क्रैम्प. इन रेनी सीजन इट कम आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस एंड बाइट इन नाइट फील्स एनी और मॉस्किटो बाइट्स एंड विक्टिम मे डाई विदाउट वेकिंग अप. So what is written here? Sorry guys for the rotation of the mobile. Okay, so yeah, ये देखिए, in a rainy season it comes out from the hiding place and bite in night फील एनी और मस्किटो बाइट. तो व्हाट इज रिटर्न हियर कि ये रेनी सीजन वगैरह में निकलते हैं एंड हाइडिंग प्लेस से वो बाहर निकलते हैं एंड अगर वो बाइट करेंगे ना तो ऐसा फील होता है कि दे मस्किटो बाइट वगैरह हुआ है. ओके, और विक्टिम को इतना पता नहीं चलता कि काइंड ऑफ स्नेक वगैरह बाइट किया है. एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ यू कैन से इतना साइन एंड सिम्टम भी इतना सीवियर उस पर्टिकुलर राइट नाउ उतना प्रोड्यूस नहीं होता है. एंड दैट्स वाई यू मे फाइंड कि विक्टिम मे डाई विदाउट वेकिंग अप. तो टाइटनिंग ऑफ फेशियल मसल हाफ एन आवर ऑफ बाइट पेशेंट में ड्यू टू फ्रॉम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी कोलैप्स हो सकता है. देखिए रसल वाइपर, आपको रसल वाइपर आप देखिए सर्कुलर बैंड से रहते हैं. रिंग पैटर्न था हमारा क्रेट के पास. रसल वाइपर हैव अ काइंड ऑफ सर्कुलर बैंड्स ओवर द बॉडी, ट्रायंगुलर है, आप देख सकते हो. ओके, दिस इज अ रसल वाइपर. रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर बहुत ही डेंजरस हमारे एस लाइक एस आवर कॉमन कोबरा रहते हैं. ओके, सॉ स्केल वाइपर आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉ स्केल वाइपर, दिस इज सॉ स्केल वाइपर. ओके, जैसे ही हमारा रसल वाइपर है इन दैट सेम है ये हमारे सॉ स्केल वाइपर है. रसल वाइपर और जो वाइपरेट वाली जो फैमिली है ना, दे हैव यू कैन से फैंग, थोड़ा सा इनका जो फैंग होता है थोड़ा सा यू कैन से कर्व होता है और थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है. तो लॉन्ग फैंग्स होते हैं इनके पास, फोल्डेड मैनर में रहेंगे, इरेक्टेड व्हेन द स्नेक स्ट्राइक्स. ओके, व्हेनेवर यू वांट टू किल हिम और यू कैन से व्हेनेवर यू टचेस बाय एनी मीन्स दे डेफिनेटली इरेक्टेड. ओके, रसल वाइपर फ्लैट ट्रायंगुलर हेड होता है इनका, स्मॉल स्केल्स ओवर द बॉडी एंड लॉन्ग हिसिंग साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं. रसल वाइपर, पिट वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, दिस आर ऑल फ्रॉम आवर वाइपरिडे फैमिली. इंडियन नेम हरा नाग वगैरह हम पिट वाइपर को बोलते हैं. ओके, ग्रीनिश येलोइश लिप स्केल वगैरह रहते हैं इसका. तो वाइपरिडे फैमिली ये देखिए. तो वाइपर्स वैस्कुलर टॉक्सिक होते हैं. कंजप्शन पैथोलॉजी मतलब फाइब्रिनोजन वगैरह को ये मतलब जितने भी ब्लड कोगुलेटिंग जो इंजाइम्स होते हैं ना उसको वो पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट कर देते हैं. एंड दैट्स वाई ब्लड कोगुलेशन हमारा पूरा हैम्पर जाता है और बहुत ही सीवियर ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है. दे डिक्रीज द फाइब्रिनोजन protein and continuous bleeding is occurring in our body. Blood remain uncoagulated and come by any route. Okay, epistaxis होता है, hemoptysis होता है, you can say by any route blood start to coming. You can see here this is a pit viper, this is the hump nose pit viper, not that much commonly seen, but pit viper, Russell viper, saw scale viper, these are commonly seen in our you can say Viperidae family. Okay, so always in folded manner, so small scale in all over the body. हैबिटेट मेनली ग्रासी रीजन में रहते हैं. एंड फैंग मार्क्स, वेनम कैनाल, पॉइजनस ग्लैंड्स एज लाइक एज आवर कॉमन कोबरा दे ऑल्सो हैव. ऑलवेज हैव अ लॉन्ग हिंज फैंग्स. ओके, हिंज अलाउज द डीप पेनिट्रेशन एंड इंजेक्शन ऑफ द स्नेक वेनम. ओके, एंड फैंग्स कैन फोर्स बैक अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ. जैसे मैंने बताया कि दे हैव अ काइंड ऑफ पैटर्न की इनकी जो फोल्डिंग होती है फैंग्स की, इनके पास कैपेसिटी होती है एज कॉमन कोबरा डज नॉट हैव दैट. ओके, ट्रायंगुलर शेप हेड होता है इनका. नॉक्चुनल अगेन ये होते हैं एंड शॉर्ट टेल होती है उनकी. दिस इज अ सी स्नेक्स, यू कैन सी हियर, दिस इज अ सी स्नेक्स, नॉट दैट मच कॉमनली सीन.
तो जितने भी बाइट के जो केसेस होते हैं स्नेक बाइट के केसेस नॉर्मली दैट इज सीइंग इन रूरल एरियाज नॉट इन अर्बन एरिया। ओके, तो ब्लंट हेड होता है हमारे हाइड्रोपिडे फैमिली में आने वाले या फिर जो हमारे वाटर स्नेक्स होते हैं। तो टाइनी नॉबी स्केल्स होता है, ग्रीन और वाइट बैंड इनके बॉडी के ऊपर होता है। हाइड्रोपिडे और स्नेक आप देख सकते हो, हाइड्रोपिडे यहाँ पे स्नेक्स हो गए। पैडल लाइक टेल होता है इनका फॉर स्विमिंग पर्पस। सेंट्रली इनकी बॉडी होती है कंप्रेस होती है, कम ऑन द सर्फेस फॉर ब्रीथ, हाईली वेनमस दे प्रोड्यूस देयर वेनम्स। ओके, एंड रैप्डोमाइलोसिस रैपिड ब्रेकडाउन द स्केलेटल मसल्स, क्योंकि मायोटॉक्सिक एजेंट इनके वेनम में होता है एंड दैट्स व्हाई रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द स्केलेटल मसल टिश्यूज आर सीइंग। ओके, तो इनिशियल मसल सिम्टम लेट अस स्टार्ट विद द न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन एज वेल एज लाइक एज इलेपिडे। तो स्लो एक्टिंग वेनम है ये, स्टीफनेस टेंडरनेस ऑफ द मसल फॉलोड बाय द सिम्टम टिपिकल ऑफ इलेपिडे ऑफ इनोवेनेशन। मीन्स मस्कुलोटॉक्सिक एजेंट तो प्रोड्यूस करती हैं, अलॉन्ग विद दैट न्यूरोटॉक्सिक एजेंट भी इनके पास होता है एज लाइक एज इलेपिडे। तो काइंड ऑफ यू कैन से breakdown of the muscles along with that showing a kind of neurotoxic features or neurological features as well. Okay, the flaccid paralysis of voluntary muscle started after injecting this venom. Okay, paralysis of muscle involving in swelling and the respiration, and that's why person start to kill. Okay, तो ये देखिए जैसे यू कैन से समरी है हमारा, ये जितने भी हमने पॉइजनस स्नेक जो देखा। ओके, ये मोर 4 डेंजर्स हमारे ये पॉइजनस स्नेक की कैटेगरी में आते हैं। कॉमन कोबरा लार्ज स्केल ऑन हेड, प्रेजेंस ऑफ अ हुड विद स्पेक्टिकल ऑन मोनोकुल मार्क। ओके, थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड टचेस आईज एंड नो शील्ड, रिलेटिवली स्मॉल फैंक्स कंपेयर विद अवर वाइपर्स। ओके, कॉमन क्रोड देखिए बैंड्स ओवर द बॉडी एंड सेंट्रली रो ऑफ स्केल्स ऑन बैक, हेक्सागोनल इनके पास क्या होता है स्केल्स होता है। एंड अल्टीमेटली टेल जो होती है वो अनडिवाइडेड रहती है। फोर्थ इंफ्रा लेबियल जो स्केल होता है वो लार्जेस्ट स्केल होता है एंड रिलेटिवली स्मॉल फैंक्स एज सेम एज कॉमन कोबरा। रसल वाइपर triangular head with small scales, V marks on the head with apex pointing forwards and 3 rows of the diamond shaped patches on the backs. Okay, and relatively long fangs which are channelized as well. Saw scale viper जो है they also have a triangular head with the same, because both are from a same family. Okay, so that's why they also have a same features as well. The white arrow marks on the head, wavy line on each flank scale of a body serrated, relatively long fangs which are channelized as same as our Russell viper. So this is all about our, you can say, classification of snakes and what they produces, their sign and symptoms, and what the clinical features they are producing. So that is all about our, you can say, classification of snake. Okay, now what is snake venom? तो स्नेक वेनम अपीयरेंस कैसा होता है, येलो कलर के होते हैं, ये क्लियर होता है, क्लियर एम्बर होता है, स्लीमिनेस इनमें होती है, यू कैन सी हियर। सो स्नेक वेनम से हम क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ एंटी स्नेक वेनम ये प्रिपेयर करते हैं। तो आप ये देख सकते हो येलो इन कलर, क्लियर एंड स्लीमिनेस, ये प्रॉपर्टीज़ वाले ये इनका स्नेक वेनम होता है। ये सोर्स इट इज़ अ टॉक्सिक सलाइवा सीक्रेटेड बाय मॉडिफाइड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड ऑफ अ वेनमस स्नेक्स। ओके, फिजिकल अपीयरेंस क्लियर एम्बर कलर्ड फ्लूइड व्हेन इट इज़ फ्रेश। तो प्रॉपर्टीज देखिए, इट एब्जॉर्ब इमीडिएटली इनटू द बॉडी एंड आफ्टर इट्स ड्राई टर्न इनटू द येलो इन कलर। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टॉक्सोएल्बुमिन्स, फाइब्रोलाइसिन, प्रोटियोलाइसिन, तो वट एवर द बॉडी हैव उनको डिसइंटीग्रेट करने के लिए सभी पॉलीपेप्टाइड्स और सभी जितने भी एंजाइम्स हैं ना, इस पर्टिकुलरली वेनम में रहता है। तो टॉक्सोएल्बुमिन्स, फाइब्रोलाइसिन, प्रोटियोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हीमोलाइसिन, एग्लूटिनिन, कार्डियोटॉक्सिन। ओके, जितने भी फीचर्स हैं हमारे स्नेक वेनम में रहता है। एंड कार्डियोटॉक्सिन अफेक्ट द हार्ट, एग्लूटिन स्टार्ट टू, यू कैन से, जो भी कुछ क्लॉटिंग जो कैस्केड होते हैं उनको डिस्टर्ब करता है। हीमोलाइसिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द आरबीसी वगैरह स्टार्ट करते हैं। फाइब्रोलाइसिन अगेन इट डिसइंटीग्रेट द फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ओके, सो यू कैन से, देखिए प्रोटीलाइसिन है, बॉडी की जो प्रोटीन होती है स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। ओके, तो दैट इज ऑल द प्रॉपर्टीज which can kill to our body. Definitely that all you can say प्रॉपर्टी वाला जो वेनम है स्नेक के पास रहता है। तो स्नेक वेनम में देखिए इलेपेडे के पास किंग कोबरा, हमारे इलेपेडे में किंग कोबरा कॉमन क्रेड वगैरह आते हैं। दे प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिक एजेंट। तो स्नेक वेनम में न्यूरोटॉक्सिक एजेंट किस में होगा, इलेपेडे वाले फैमिली में होगा। वाइपरेडे में वैस्कुलोटॉक्सिक एजेंट होगा, और जो हमारे सी स्नेक्स हैं या फिर जो हाइड्रोपेडे वाले जो हैं दे हैव अ साइटोटॉक्सिक एजेंट। ओके, तो इलेपेडे देखते हैं, तो इलेपेडे में फॉस्फोलाइपेस A2 रहता है, पॉलीपेप्टाइड्स रहता है, हाइड्रोलेसिस वगैरह रहता है। एंड
Presynaptic neurotoxins also they have, okay, typical of Elliptidae and some Viperidae as well. The presynaptic neurotoxins, these are the phospholipids A2 that damage the nerve ending, blockage the release of acetylcholine, and ultimately after the blocking जब हो जाएगी तो there is a not further movement of the muscle, okay, तो paralysis हो जाती है muscle की. पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं दैट कम्पीट विद द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड दे लीड टू द पैरालिसिस एज वेल. तो क्रेट कंटेन बोथ न्यूरोटॉक्सिन्स, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन्स, एंड कोबरा कॉमन कोबरा के वेनम में दे हैव और दे कंटेन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन्स. ओके, Viperidae also have a phospholipids A2. They have a procoagulants special for a Viperidae. They activates different steps of a clotting cascades. Okay, जो procoagulants रहता है ना, ultimately they activates a clotting cascade mechanism, और you can say clotting जो हमारा जो blood clotting की जो mechanism होती है, they start of that. The formation of fibrin in the bloodstream, immediately वो जो fibrin जो बने हुए हैं they start to break down due to the fibrinolactic enzymes which is ultimately present in the you can say venom of the Viperidae family, that leads to the DIC or disseminated intravascular coagulopathy. They also has a hemorrhages as well. Okay, so zinc metalloproteinase enzymes, along with that this hemorrhages damages the endothelial, okay, endothelial damage of the blood vessels, and in spontaneous systematic hemorrhages they can seen as well. Okay, so you can see lethal dose of the of a venom of a different poisonous snakes. ओके, क्रेट 6 मिलीग्राम लीथल डोज है ये, कॉमन कोबरा 12 मिलीग्राम, सॉ स्केल वाइपर 8 मिलीग्राम, ये लीथल डोज है. ओके, आफ्टर इंजेक्टिंग दिस यू कैन से दिस अमाउंट ऑफ वेनम बॉडी कैन डेफिनेटली बॉडी विल ओके डाई. ओके, रसल वाइपर 15 मिलीग्राम, दिस आर द लीथल डोज ऑफ वेनम. ओके, एंड एवरेज पर बाइट, तो इतना ये क्या है लीथल डोज है वेनम का. क्या है ये जो इंडिविजुअली जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे जितने भी ये पॉइजनस स्नेक्स हैं ये लीथल डोज है, और पर बाइट में क्रेट 20 मिलीग्राम जो है वो वेनम इंजेक्ट करता है, कॉमन कोबरा 60 मिलीग्राम बाइट करता है वेनम. ओके, सॉ स्केल वाइपर पर बाइट में 13 मिलीग्राम ये क्या करता है इंजेक्ट करता है, और रसल वाइपर 63 मिलीग्राम क्या करता है काइंड ऑफ ये वेनम हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है. तो ये लीथल डोज है, और ये पर बाइट ये कितना है एवरेज यील्ड है. तो दैट यू हैव टू नंबर की आप देख सकते हो पर बाइट कंपेरिजन में 5 टाइम्स है. ओके, लिटिल डोज जितना है उसके 5 टाइम में क्या कर रहा है ये पर बाइट क्या कर रहा है इंजेक्ट कर रहा है बॉडी के अंदर. तो डेफिनेटली अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो बॉडी डेफिनेटली कैन किल. ओके, इमीडिएटली कैन किल. तो ये कॉमन फीचर वगैरह बताया है. स्नेक वेनम न्यूरोटॉक्सिक डायरेक्टली अफेक्ट टू अवर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड लीड्स टू द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, एपिलेप्सी एंड पैरालिसिस. ओके, ये देखिए वैस्कुलर टॉक्सिक स्नेक्स ब्लड टिश्यूज रप्चर, दे रप्चर द ब्लड वेसल्स, hematoma, they form the hematoma because vascular toxic snakes what they do, they have a kind of you can say vascular toxic agent, and vascular toxic agent they leads to the fibrinolytic enzymes, and ultimately there is a rupturing of the fibrin protein that leads to the you can say a bleeding from any sides of the body. Okay, that's why there is may form a hematoma, फाइब्रोलाजिन, प्रोटीलाजिस, ये सभी एजेंट रहता है. मायोटॉक्सिक जो स्नेक्स हैं कॉमनली सी स्नेक्स के पास रहता है ये मायोटॉक्सिक स्नेक्स, दैट मच नॉट कॉमनली सीन. मायोग्लोबिन यूरिया, रेस्पिरेटरी फेलर, बॉडी एक वगैरह से भी क्या है स्नेक्स बेरम के, मतलब ये फैमिली वाले यानी कि हाइड्रोपेटा वाले जो फैमिली है, मतलब जो स्नेक्स विच इज़ प्रेजेंट इन द एक्वेटिक जो स्नेक्स हैं एंड अल्टीमेटली वो पॉइजनस अगर नेचर रहेंगे दे प्रोड्यूस द यू कैन से मायोग्लोबिन यूरिया, रेस्पिरेटरी फेलर एंड बॉडी है. ओके, तो स्नेक उनके स्नेक्स में सॉरी उनके वेनम में अल्टीमेटली ये सभी क्या होते हैं एजेंट्स होते हैं. तो सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ ये देखिए नॉन वेनमस स्नेक बाइट्स. तो यूनिवर्सल फियर एसोसिएटेड विद द स्नेक्स बाइट इंड्यूसेस अ स्टेट ऑफ शॉक in many of the patient characterized by syncope, hypotension, sweating, feeble pulse, okay, and ultimately rapid shallow breathing, and lastly they may also lead to the death. So what is written here, non-venomous snakes ultimately they do not have any venom, okay, because of that not having venom they ultimately if they bite definitely we will not kill, but there is a fear, there is a universal fear associated with any bite ऑफ एनी स्नेक. ओके, तो अगर कोई स्नेक्स अगर बाइट कर देगा तो डेफिनेटली वी हैव अ फियर कि स्नेक ने हमें बाइट किया है एंड नाउ वी विल किल और नाउ वी विल डाई. तो डेफिनेटली ये जो फियर है ना पर्सन को वो फियर क्या करता है लीड्स टू द डेथ.
अदरवाइज नॉन वेनमस स्नेक्स के बाइट के थ्रू भी बहुत सारे डेथ के जो केसेस है हमें रोजाना देखने को मिलता है इन आवर रूरल एरियाज, नॉट इन अर्बन्स. Okay, universal fear associated with the snake bite induces a state of shock in many of the patient. Syncope, hypertension, sweating, feeble pulse, rapid shallow breathing. Okay, the bite site may demonstrate multiple teeth impression, and usually there is a lack of a significant local pain or swelling. But due to the universal fear or due to the fear, the most of the patient of this non-venomous snake bite they die. Okay, इलिपिडे बाइट का हम देखते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट बाइट. लोकल फीचर देखिए बाइट मार्क्स वगैरह प्रोड्यूस कर देंगे. बर्निंग पेन होता है पेशेंट को. स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन होगा. लोकल फीचर मतलब जहाँ पे वो बाइट करेंगे. ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आपको मिलेगा. सिस्टमेटिक फीचर्स में मतलब पूरे बॉडी में जनरलाइज फीचर आपको क्या क्या मिलेगा. प्री पैरालिटिक स्टेज में वोमिटिंग होगा. हेडेक रहता है. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा. पैरालिटिक स्टेज में पोडोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होता है. ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है. ओके, ड्राउजीनेस, डिस्फेजिया, कन्वर्जन, बल्बार पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ये सभी क्या है पैरालिटिक स्टेजेस हैं. वाई दे प्रोड्यूसेस दिस काइंड ऑफ न्यूरोटॉक्सिक और यू कैन से न्यूरोलॉजिकल फीचर्स बिकॉज इलिपिडे बाइट, जैसे मैंने आपको बताया इलिपिडे बाइट में कॉमन कोबरा क्रिएट आते हैं. एंड दिस इलिपिडे वाले जो फैमिली है दे हैव द न्यूरोटॉक्सिक एजेंट इन देयर वेनम एंड दैट्स वाई मेनली दे प्रोड्यूसेस a kind of you can say a neurological features. Okay, you will see when you will see a kind of Viperidae family, definitely you will see a kind of hemotoxic or hematological features. Okay, so don't worry, we will discuss as well, but you can see here a kind of neurological features are more commonly seen in our Illipidae वाले जो snakes होते हैं normally in common cobra और जो हमारे crate हैं. Okay, cobra bite ये देखिए you can see here ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रहा है. पोटोसिस है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रहा है. कॉमन कोबरा बाइट है यहाँ पे. तो आफ्टर बाइटिंग ऑफ दिस पर्सन फैमिली किल द कोबरा एंड डेफिनेटली टू आइडेंटिफाई विच स्नेक्स बाइट दिस पर्सन, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फैमिली ब्रिंग दिस स्नेक्स किल स्नेक्स एज वेल. ओके, सो अगर ये आइडेंटिफाई रहेगा तो डेफिनेटली रेस्पेक्टिव जो हमारे स्नेक्स जो वेनम है सॉरी इस जो हमारे रेस्पेक्टिव जो एंटी स्नेक वेनम है वी कैन गिव. अदरवाइज हमें पॉलीवैलेंट स्नेक वेनम देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ मोनोवैलेंट स्नेक वेनम. ओके, तो अगर आइडेंटिटी रहेगी कि ये कॉमन कोबरा ने काटा है तो डेफिनेटली वी कैन गिव अ मोनोवैलेंट स्नेक वेनम. ओके, तो न्यूरोटॉक्सिक बल्बार पैलेसिस यू कैन सी हियर अगेन न्यूरोटॉक्सिक ये क्या है काइंड ऑफ फीचर्स है. बल्बार पैलेसिस, क्रेट बाइट मार्क्स आप देख सकते हो. क्रेट बाइट मार्क्स तो इनके जो क्रेट होते हैं कॉमन क्रेट जो होते हैं दे हैव अ वेरी लो शेप फैंग्स एंड दैट्स वाई इनका प्रोमिनेंट इतना फैंग मार्क इतना विजिबल ही नहीं होता है. क्रेट बाइट फैंग मार्क विथ मिनिमल लोकल रिएक्शन. ओके, वाइपरिडे बाइट देखते हैं. लोकल फीचर्स में आपको रैपिड स्वेलिंग मिलेगा. जहाँ पे बाइट हुआ रहेगा वहाँ पे रैपिड स्वेलिंग मिलेगा विद डिस्कलरेशन एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन विच मे एक्सटेंड टू एंटायर बाइटन लिम्ब ऑल्सो. ओके, जहाँ पे बाइट हुआ रहेगा that whole limb may affected. frank bleeding from the bite side you may seen. severe pain रहेगा. systematic feature में generalized feature में you also find कि generalized bleeding. okay, from any root bleeding can start. तो generalized bleeding tendencies, epistaxis, hemoptysis, okay, bleeding gums, hematuria, malina, okay, purpuric spots you may find. okay, purpuric spot means a bloody spots. तो मैलिना मीन्स यू कैन से ब्लडी स्टूल जो रहेगा. हिमेचुरिया मीन्स यू में फाइन की जो उसका यूरिन होगा द ब्लड मिक्स विद यूरिन दैट इज कॉल्ड हिमेचुरिया. ओके, ब्लीडिंग गम्स आपको रहेगा. तो पूरे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वाइपरिडे जो फैमिली है दे हैव अ हीमोटॉक्सिक एजेंट इन देयर वेनम. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे मेनली प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ hemotoxic features. okay, instead of neurotoxic features. definitely I will not saying कि neurological features they do not produce, but जो उनका मेन जो फीचर्स है दे आर प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ हीमोटॉक्सिक फीचर्स. ओके, तो रीनल फेलियर हो जाएगा. वाइपर बाइट में देखिए स्वेलिंग एडिमा ऑफ लोअर लिम्ब. ओके, जहाँ पे बाइट हुआ रहेगा उस बाइट को वो लेकर पूरे होल दिस यू कैन से लोअर लिम्ब ऑल्सो. देखिए ब्लीडिंग गम यू कैन सी हियर वाइपर बाइट ब्लीडिंग गम्स. ओके, हिमेचुरिया यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हियर. तो हाइड्रोफिडो बाइट में इतना कॉमनली नहीं होता है. जो हमारा पोलीवैलेंट जो स्नेक वेनम होता है जो कि नॉर्मली रूरल एरिया में जैसे मैंने आपको बताया, और रूरल एरियाज में नॉर्मली जो स्नेक की मैनेजमेंट होती है ना वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होती है. एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नॉर्मली इनके पास मोनोवैलेंट स्नेक वेनम नहीं होता है. जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेक्स की आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा रेयरली होता है. एंड दैट्स वाई फिजिशियन इंजेक्ट द
और फिजिशियन मैनेज द बाइट केस बाय इंजेक्टिंग इन द पोलीवैलेंट स्नेक वेनम इंस्टेड ऑफ और यू कैन से रादर देन अ मोनोवैलेंट स्नेक वेनम। ओके, तो हाइड्रोफिटा बाइट में मिनिमल स्वेलिंग होती है ऑफ द बाइट एरिया, फ्रैंक ब्लीडिंग रहेगा, सीवियर पेन होती है। तो सिस्टमेटिक फीचर्स में माइल्जिया रहेगा, पेन इन मसल स्टिफनेस रहता है, मायोग्लोबिन्यूरिया रहेगा एंड रीनल ट्यूबुलर न्यूक्रोसिस हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अवर हाइड्रोफिडा बाइट। और यू कैन से हाइड्रोफिडे फैमिली आने वाले जितने भी हमारे एक्वेटिक स्नेक्स। ओके, तो नॉन पॉइजनस स्नेक्स प्रोड्यूस अ यू शेप बाइट एंड पॉइजनस स्नेक्स प्रोड्यूस द 2 बाइट मार्क्स और यू कैन से 2 फैंग साइंस विच गिवन द डिस्टेंस। ओके, सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होता है हमारे स्नेक बाइट में आइदर फ्रॉम अ नॉन वेनमस स्नेक्स और वेनमस स्नेक्स, मोस्ट कॉमन जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो फियर होता है। तो मैक्सिमम पेन सीन इन वाइपर बाइट विथ ब्लीडिंग एट अ लोकलाइज एंड जनरलाइज ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया, डायग्नोसिस देखते हैं, हाउ वी विल फाइंड each and every our you can say venomous snakes. तो frank marks diagnosis of venomous snakes snake bite we are seeing. okay, तो frank marks नॉर्मली अगर पॉइजनस स्नेक से अगर बाइट किया रहेगा तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई, वी हैव सीन और वी हैव डिस्कस द नॉन वेनमस स्नेक्स क्या क्या होगा, कोई भी वहाँ पे यू शेप पैटर्न मिलेगा। नाउ हाउ यू विल डायग्नोस यू कैन से वेनमस स्नेक्स बाइट और नॉट। ओके, तो टू डायग्नोस द वेनमस स्नेक बाइट यानी कि वेनमस यानी पॉइजनस स्नेक्स ने बाइट किया या नहीं किया है, तो व्हाट विल बी द फीचर्स यू विल गेट इन दैट बॉडी और इन दैट पर्सन। तो फ्रैंक मार्क मिलेगा आपको। ओके, फ्रैंक मार्क मिलेगा। क्लासिकली देयर शुड बी 2 पंक्चर वुंड बी अ पार्ट ऑफ 8 मिलीमीटर और टू 8 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज। ओके, वाइल ये देखिए अगर साइड स्वीप हुआ रहेगा तो डेफिनेटली 1 मार्क मिलेगा आपको। मतलब साइड मतलब अगर कोई बॉडी के अगर लेटरली या फिर साइड में अगर बाइट हुआ रहेगा तो डेफिनेटली यू विल गेट अ 1 मार्क। बट नॉर्मली venomous snakes producing a 2 bite mark or 2 fang marks. okay, so you will get a fang marks. डेफिनेटली यू कैन यू विल क्लियर कि फैंग मार्क्स हमें अभी मुझे मिल गया है, ये वेनमस स्नेक्स के टूवर्ड्स लेके जा रहा है मुझे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक्स अगर रिलेटिव अगर बोलेंगे कि ऐसा उसके अपीयरेंस थी उस स्नेक की या फिर वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दैट कि ये स्नेक को हम ये बोलते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन से कि या देयर इज अ वेनमस स्नेक्स बाइट का हुआ रहेगा, यानी कि जो बाइट है ये वेनम ये जो बाइट है अल्टीमेटली दैट इज ड्यू टू द पॉइजनस स्नेक। ओके, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में व्हाट विल फाइंड, हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में दे रिवील सीवियर एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, अगर इफ एनी नॉन वेनमस स्नेक्स इफ द बाइट और यू कैन से अगर कोई पर्सन को नॉन वेनमस स्नेक्स अगर बाइट करेगा तो डेफिनेटली द इन्वेस्टिगेशन वी विल डू इफ वी डू देर इज अ नो हिमेटोलॉजिकल रिवील्स और देर इज अ नो न्यूरोलॉजिकल रिवील्स। ओके, एंड दैट्स वाई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हिमेटोलॉजिकल क्या क्या शो करेगा, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोलाइसिस, प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम और यू कैन से प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ओके, प्रोलॉन्ग एपीटीटी एंड डिप्रेस फाइब्रोनोजन लेवल। ओके, so these are the features you find, definitely you will find, so you can say there is a case of venomous snake bite. okay, ये देखिए ईसीजी शो ब्रेडिकार्डिया, एसटी सेगमेंट इलेवेशन और डिप्रेशन, टी वेव आपको इन्वर्जन मिलेगा, क्यूटी जो वेव रहेगा वो प्रोलॉन्ग रहेगा। ये देखिए यू कैन से साइड स्वीप हुई है, सिंगल फ्रैंक मार्क है। अगर यहाँ पे जो हैंड्स के अगर साइड में अगर बाइट किया तो डेफिनेटली देयर विल बी द 1 फैंग मार्क्स इंस्टेड ऑफ 2। ओके, बट यू शुड नो कि वेनमस स्नेक्स प्रोड्यूसर 2 फैंग मार्क्स। ओके, नॉट अ सिंगल मार्क्स। मेटाबॉलिक फीचर्स में यू विल फाइंड कि हाइपरकेलेमिया रहेगा, हाइपोक्सियमिया विद रेस्पिरेटरी एसोसिएटिव्स आपको मिलेगा, देयर इज अ सीवियर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी होगा। यूरिनरी एग्जामिनेशन में रिवील्स द हीमोचूरिया, प्रोटीन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया एंड मायोग्लोबिन यूरिया। ओके, एंड चेस्ट एक्सरे में यू विल फाइंड कि पल्मोनरी एडिमा है, इंट्रा पल्मोनरी हिमरेजेस है एंड प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। तो दिस आर द अगर आपको ये सभी फीचर्स मिलेगा डेफिनेटली दिस सजेस्ट कि देयर इज अ बाइट केस ऑफ अ वेनमस स्नेक्स। ओके, तो सिम्टम देखिए वाइपर स्नेक बाइट में इन्फ्लेमेशन आपको मिलेगा एंड नॉन बियरेबल पेन एट बाइट साइड। ओके, वाइपर स्नेक बाइट हुआ रहेगा तो नॉन बियरेबल पेन एट बाइट साइड, इन्फ्लेमेशन रहेगा उस पर्टिकुलर बाइट साइड पे या फिर लोकल साइड पे। देयर इज अ फाइब्रोनालाइजिन कोगुलेशन प्रोफाइल फुल्ली डिस्टर्ब रहेगा इस पेशेंट का, rupturing of the blood vessels also seen, cardiotoxic agent that is nothing but a cardiotoxin जो रहेगा they also present in the you can say Vipridae वाले जो फैमिली रहते हैं उनके स्नेक में। ओके, तो कार्डियोटॉक्सिक एजेंट कॉल्ड एज अ कार्डियोटॉक्सिन ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेनम ऑफ द वाइपर और वाइपरिडे फैमिली वाले स्नेक। ओके, तो डेथ में हैपन ऑल्सो। व्हाट बी द ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीअश्योर द पेशेंट बिकॉज देर इज अ यू कैन से
जो मोस्ट कॉमन जो डेथ होती है, कॉज जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन आवर स्नेक बाइट, देर इज अ फियर. ओके, तो दैट्स वाई यू हैव टू रीअश्योर द पेशेंट. तो रीअश्योरेंस, keep the patient warm and at rest. Okay, immobilize the vital limb by you can say using the tourniquet वगैरह. Use of anti snake venom. Okay, then definitely symptomatic treatment we have to also give. Okay, because अगर severe pain है तो पेन किलर देना है, fever है तो we have to give a kind of paracetamol, और you can say अलग अलग एनसैड्स के जो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक वगैरह भी हैं देना है हमें, एनसैड भी ड्रग देना है. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टोमोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह हमें देना है. देन निमोनिक देखिए, आपको देखिए रीअश्योरेंस निमोनिक ऐसा कुछ है, राइट वगैरह का निमोनिक मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है. तो आर से रीअश्योरेंस, आई से इमोबिलाइज द लिम्ब, जीएस से गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, एंड टी स्टैंड फॉर टेल द डॉक्टर ऑफ एनी सिस्टमेटिक साइन एंड सिम्टम्स. बिकॉज अगर सिस्टमेटिक साइन एंड सिम्टम रहेगा तो उस सिम्टम से ही पेशेंट लीड्स टू डेथ, एंड दैट्स वाई सिम्टोमोलॉजिकल ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद दैट एंटी स्नेक वेनम और अलॉन्ग विद दैट बाइट मैनेजमेंट may save the life of that person. Okay, so reassurance is the first and one of the foremost you can say treatment में आता है हमारा. reassure the patient, calm the patient, okay, and stop the spread of the you can say venom. How? You have to immobilize the bite site. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी पेशेंट came in or patient arrive in the hospital, you will not immobilize that area, because this is a you can say from where the bite is seen, from there you have to start this you can say this management. Okay, so you have to reassure the patient, and after that you have to use the tourniquet to stop the spread of the venom. Okay, as soon as the patient came into the you can say a kind of hospital or district hospital, immediately you have to give a anti snake venom. Okay, without wasting time, because जो tourniquet जो हम open करेंगे ना, that should be open when the anti snake venom is provided or when the anti snake venom is available. Okay, तो ये देखिए, applied tightly proximally to bite site to prevent the lymphatic spread of venom. इट शुड बी कैपेबल ऑफ एडमिटेटिंग अ फिंगर एंड अंडर इट. इतना टाइट आपको नहीं करना है, और जहाँ पे भी आपने टॉर्निकेट वगैरह या फिर कोई क्लोथ वगैरह आपने बांधा है अबाउट टू द बाइट, डेफिनेटली आपको पल्सेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलरली बाइट के बीनीथ जो भी एरिया है ना. नॉर्मली लिम्ब वगैरह में बाइट ज़्यादा होता है, तो उस लिम्ब जो हमारा रहेगा उस लिम्ब की जो रीज़न होगी, यानी कि जहाँ पे आपने बांधा ना, डिस्टली आपको पल्सेशन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको देखना है. ओके, अदरवाइज डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो क्या हो जाएंगे, वो अफेक्टेड हो जाएंगे, उनकी क्या होगी, गैंग्रेनस हो जाएगा. तो डिस्टल पल्स ऑल्सो शुड बी मेंटेन, एंड वंस अप्लाइड इट शुड नॉट लूजन अंटिल एंटी वेनम थेरेपी इज नॉट बिगेन. ओके, एंड क्रायोथेरेपी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड एप्लीकेशन ऑफ आइस एट द बाइट साइड, यू विल नॉट डू दैट. ओके, एंड अल्टीमेटली इंसिजन एंड सक्शन इज नॉट एडवाइज. तो ये हॉस्पिटल में पेशेंट आने के बाद ये आप टॉर्निकेट वगैरह अप्लाई नहीं करोगे. आई जस्ट सेड कि काइंड ऑफ ये इनिशियल ट्रीटमेंट है, इनिशियली हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द बाइट. ओके, यानी कि अभी बाइट हुआ है तो डेफिनेटली आई विल डू इमोबिलाइज टू आवर सेल्फ. ओके, फ्रॉम द पर्टिकुलरली रीचिंग टू द आवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ओके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब पहुँचेंगे तो वो वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होगी, बट डेफिनेटली आई हैव टू इमोबिलाइज आवर बाइट साइड. ओके, तो इंसिजन एंड सक्शन इज नॉट एडवाइज, दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि मेनली जो हमारे मेनली रूरल जो हमारे लोग होते हैं, दे आर डूइंग द इंसिजन एंड सक्शन ऑफ दैट बाइट एरिया टू रिमूव द पर्टिकुलर वेनम. ओके, दैट इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. द क्लीन बाइट साइड विद पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन एंड डू नॉट अप्लाई ड्रेसिंग उसके ऊपर. ओके, एंड यूज ऑफ एंटीस्मेनम, आपको ये डिसाइडेड करना है कि स्पेसिफिक है कि पॉलीवैलेंट है. अगर स्पेसिफिसिटी अगर रहती है तो डेफिनेटली यू विल गिव अ मोनोवैलेंट वाला एंटीस्मेनम, अदरवाइज यू विल गिव अ पॉलीवैलेंट स्नेक वेनम. ओके, तो यूज बिफोर इट्स सेंसिटिविटी टेस्ट, यू हैव टू अल्टीमेटली आपको सेंसिटिविटी टेस्ट करना है बिफोर गिविंग द एंटी स्नेक वेनम ऑफ दैट यूजुअल डोज. ओके, तो आपको हमेशा आपको इंजेक्शन एड्रेनालिन, एविल इंजेक्शन एंड बेटानोसिल 4 ml का इंजेक्शन ये आपको हमेशा रेडी रखना है इन आवर एंटी स्नेक वेनम के थेरेपी में या फिर एंटी स्नेक वेनम के मैनेजमेंट में. तो यू हैव टू ऑलवेज मॉनिटर पल्स रेट, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, और यू कैन से ब्लड प्रेशर और WBC काउंट एवरी हावर ऑफ दैट पेशेंट. ओके, ब्लड यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिन आउटपुट, ओमिटिंग, डायरिया, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, दैट यू हैव टू मेजर और दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कि एंटी स्नेक वेनम हम दे रहे हैं, ये सभी इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा. ओके, तो एक्सटेंट ऑफ स्वेलिंग एंड नेक्रोसिस ऑलवेज यू हैव टू you can say
उसको ऑब्जर्व कर देना है। ग्रेड ऑफ इनोवेशन मतलब एंटी स्नेक वेनम हमें किन को देना है, तो उसकी भी ग्रेड्स वगैरह हैं। तो ग्रेड 0 कि एक भी मतलब नो इनोवेशन अगर रहेगा तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि नो इनोवेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो लोकल साइन एंड सिम्टम्स, ओके, नो सिस्टमेटिक साइन बाय 24 आवर, तो डेफिनेटली वी विल कंफर्म कि नो इनोवेशन है, कि कोई भी बाइट वगैरह नहीं हुआ है। पर्सन ने जस्ट सांप वगैरह को देखा था, स्नेक को देखा था, एंड सडनली वो फियर के कंडीशन में हॉस्पिटल में आता है कि सांप ने मुझे क्या किया, बाइट कर लिया। तो वी विल सी कि नो लोकल साइन, जहाँ पे पूरे होल बॉडी में हमने देखा कि कोई बाइट का साइड नहीं है, एंड नो सिस्टमेटिक साइन बाय 24 आवर, तो वी विल नॉट गिव द एंटी स्नेक वेनम टू दैट पर्सन, ओके। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग द क्लियर कट देन डेफिनेटली वी हैव टू गिव द एंटी स्नेक वेनम, बिकॉज एंटी स्नेक वेनम के उनके अलग से कुछ साइड इफेक्ट है, ओके। एंड इफ वी गिव दैट एंटी स्नेक वेनम टू नॉन इनवेनम पेशेंट, डेफिनेटली देयर इज अ सीवियर साइड इफेक्ट मे सीन टू द पर्सन, ओके। तो मिनिमल इनवेशन अगर हुआ रहेगा, लोकल स्वेलिंग रहेगी, पेन, तो ये सभी जो फीचर्स है ना, ये फीचर्स के थ्रू वी कैन से कि मिनिमल इनवेशन हुआ है, यानी कि मिनिमल वेनम का क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ है। तो नो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, पेन विदाउट प्रोग्रेशन है, लोकल पेन है, लोकल स्वेलिंग है, तो डेफिनेटली वी विल सी द मिनिमल क्या हुआ है, इनिमिनेशन हुआ है। तो यहाँ पे हम एंटी स्नेक वेनम फिर भी नहीं देंगे, वी विल गिव द पेन कंट्रोल मेडिकेशन, और पेन कंट्रोल जो मेडिसिन होगी हम यहाँ पे देंगे, ओके। ग्रेड 2 में क्या है, मॉडरेट इनोवेशन है, स्वेलिंग है। कैसे हमने मॉडरेट आइडेंटिफाई किया, स्वेलिंग है, लोकल साइड पे पेन है, एक्यूमोसिस पूरे बॉडी पे है, ओके, एंड अल्टीमेटली सिस्टमेटिक साइन नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह ये दिख रहा है, कोगुलोपैथी है, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड्स आपको दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, तो वी विल गिव द और वी विल कैटेगराइज इनटू द मॉडरेट इनोवेशन, ओके। यानी कि मॉडरेटली क्या हुआ, ये जो स्नेक वेनम है वो इंजेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर पर्सन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी स्नेक वेनम देंगे। जो सीवियर इनोवेशन हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, मार्क लोकल रेस्पॉन्स होगा, वेसिकल्स ब्लिस्टर वगैरह आपको दिखेगा, हाइपोटेंशन और शॉक कंडीशन में आपको पेशेंट दिखाई देगा, ब्लीडिंग डायथिसिस मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिसीज रहेगा, and there is an examination of coagulopathy, anemia, metabolic acidosis, okay. If you find these features, okay, after this examination or after seeing the patient, definitely you will consider this patient into the severe innovation category, okay. तो moderate innovation and severe innovation वाले जो patient होंगे, definitely there is a proper treatment that is called as a anti snake venom, okay. तो यस यहाँ पे वही लिखा है, बिफोर यूजिंग एंटी स्नेक वेनम यू हैव टू कैटेगराइज द पेशेंट इनटू द 4 कैटेगरी। नो इनोवेशन वाला कैटेगरी, जहाँ पे आपको कोई फैंग मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा, माइल्ड में 0.15 सेंटीमीटर आपको एडिमा में रहेगा, मॉडरेट में देर इज अ सीवियर यू कैन से स्वेलिंग वगैरह एट द बाइट साइड, फैंग मार्क्स आपको मिलेगा, ओके, बट दैट मच कॉम्प्लिकेशन एज सीन आवर सीवियर केसेस यू विल नॉट फाउंड इन द मॉडरेट, एंड मॉडरेट एंड सीवियर को हम एंटी स्नेक वेनम क्या करेंगे, देंगे। तो एंटी स्नेक वेनम रिकमेंडेड फॉर मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी ओनली, ओके। तो एवीटी एंटी स्नेक वेनम जो थेरेपीज हैं, देर इज अ इंडिकेशन नॉट इन रूटीन प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, तो शुड बी गिवन ओनली व्हेन फीचर्स ऑफ इनोवेशन इज प्रेजेंट, ओके। दैट टू नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेडस वगैरह आपको आइडेंटिफाई करने के बाद ही यू हैव टू गिव अ एंटी वेनम थेरेपी, ओके। तो इनकोगुलेबल ब्लड आपको यहाँ पे मिलेगा, स्पॉन्टेनियस सिस्टमेटिक ब्लीडिंग अगर रहेगी, ओके, हाइपरटेंशन, न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक फीचर्स यू विल फाइंड, ओके। तो डिप्रेस कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन, एक्सपांडिंग लोकल स्वेलिंग रहेगा, रीजनल लिम्फेडेनोपैथी मिलेगा, रीजनल लिम्फेडेनोपैथी, लोकल स्वेलिंग, लोकल पेन, लोकल ब्लीडिंग, ओके, और एक ऐसे लोकल स्वेलिंग वगैरह मिलेगा, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एंटी वेनम थेरेपी देना रहता है, ओके। तो इन इंडिया देर इज ओनली पोलीवेलेंट एंटी वेनम अवेलेबल विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉमन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉस्केल वाइपर, और यही मोर 4 डेंजरस हमारे वेनमस स्नेक्स है। एंड सोर्स देखिए हैज़ नॉर्मली ये पर्टिकुलर ये जो स्नेक्स होते हैं, इनके स्नेक्स के वेनम जो रहते हैं ना, इनके वेनम को ऑलरेडी निकाला हुआ रहता है बाय एक्सपर्ट्स वगैरह के थ्रू। इनके निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ये वेनम डायरेक्टली हम किसी हॉर्स में इंजेक्ट करते हैं, एंड हॉर्स में इंजेक्ट करने के बाद हॉर्स की जो एंटीबॉडी होती है ना, वो एंटीबॉडी हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, निकालते हैं, और निकालने के बाद एक लाइफोलाइज सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं उस पर्टिकुलरली एंटीबॉडी का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं, ओके। तो हैज़ इक्वाइन 1 ग्राम फ्रीज डाइट पाउडर और लाइफोलाइज पाउडर वगैरह हम बोलते हैं, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम ये आपको ऐसा लिक्विड फॉर्म में है या फिर काइंड ऑफ ऐसा फॉर्म में आपको मिलेगा नहीं, डेफिनेटली एंटी स्नेक वेनम ये पाउडर फॉर्म में रहता है। यू हैव टू डाइल्यूट द पाउडर ड्यूरिंग द एंटी स्नेक वेनम थेरेपी और ड्यूरिंग द एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन, ओके। तो रिकंस्ट्रक्ट करना रहता है
इन 10 ml ऑफ स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन सप्लाइड अलॉन्ग विद ऑयल। ओके, तो एक ऑयल आपको 10 ml ऑफ स्टेराइल वाटर में क्या करना है, डाइल्यूट करना है एंड विद इन 10 मिनट वो ऑयल को क्या करना है, फिनिश करना है। ओके, तो each ml has a 0.6 milligram of dried Indian cobra, 0.4 milligram of dried common crate venom, 0.6 milligram of Russell Viper venom and 0.4 milligram of saw scale venom। ओके, तो ये काइंड ऑफ फिगर से each ml की बात कर रहे हैं, यानी कि 10 ml जो आपका काइंड ऑफ फिगर से कॉन्स्टिट्यूट मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपको मिलेगा। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा या फिर आप गूगल वगैरह से देख सकते हो कि एंटी स्नेक वेनम ये आपको वाटर या फिर लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये पाउडर फॉर्म में रहते हैं। ये पाउडर को आपको डाइल्यूट करना है विद द स्टेराइल वाटर और यू कैन से डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सलाइन से। तो 10 ml आपको नॉर्मल सलाइन लेना है, 10 ml आपको डिस्टिल वाटर वगैरह लेना है और 10 ml आप जब यहाँ पे डाइल्यूट वगैरह करो तो डेफिनेटली विल गेट अ 10 ml सोल्यूशन और each ml ऑफ अ सोल्यूशन each ml ऑफ दिस एंटी स्नेक वेनम में has a 0.6 milligram dried Indian cobra, 0.4 milligram of dried common crate venom, okay, 0.6 milligram of Russell Viper venom and 0.4 milligram of saw scale venom। Okay, how we will administrate? First of all, before the administration you have to you can say do the sensitivity test कि पर्टिकुलर जो एंटी स्नेक वेनम देने हैं हम पेशेंट को वो उसको यू कैन से स्विचेबल होगा या नहीं होगा। तो यू हैव टू फर्स्ट इंजेक्ट द इंट्राडर्मली 0.02 to 0.03 ml ऑफ 1:10 डाइल्यूशन वाला एंटी वेनम इनटू द ये देखिए डाइल्यूट वगैरह करने के बाद आपको क्या करना है 0.02 टू 0.3 ml ये जो अभी हमने प्रिपेयर किया ना सोल्यूशन कैसे हमने प्रिपेयर किया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑयल लेना है एंटी स्नेक वेनम का 10 ml ऑफ जो हमारा डिस्टिल वाटर है ऑफ 0.9% जो हमारा नॉर्मल सलाइन है वो हमें लिक्विड लेना है और डाइल्यूट वगैरह करने के बाद 0.02 टू 0.03 ml of that anti-snake venom we have to give the intradermally to the patient. We are observing the sensitivity test. The positive test is indicated by development of arterial wheal with the erythema within 15 minutes to the patient. तो definitely इनकी जो ट्रीटमेंट होगी हमें थोड़ा सा इनका अलग वे में करना पड़ेगा। तो देन desensitization can be attempted by देखिए subcutaneous injection of 0.1 to 0.1, 0.2, 0.5 ml of a 1:100 डाइल्यूशन ऑफ एंटी वेनम एट अ 15 मिनट इंटरवल। तो जो 1:10 हम डाइल्यूशन कर रहे थे अभी यहाँ पे आपको करना है 10 ml नहीं लेना है, आपको यहाँ पे 100 ml डाइल्यूशन करना है। अगर ये जो पर्टिकुलर जो सेंसिटिविटी टेस्ट अगर ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा, आर्टिक्रिया वगैरह अगर मिलता है विद एरिथीमा वगैरह मिलता है तो डेफिनेटली आपको इनकी जो ट्रीटमेंट होगी वो अलग हो जाएगी। आपको यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.5 ये आपको ऑर्डर में क्या करना है विथ 15 मिनट में आपको 0.1 डालना है, अगेन दूसरे 15 मिनट में आपको 0.2 ml डालना है। जो रेशो रहेगा वो 1:100 होगा। ओके, क्योंकि सेंसिटिविटी ये क्या करें पॉजिटिव शो हो गया एंड दैट्स वाई वी कांट इंजेक्ट द एंटी स्नेक वेनम डायरेक्टली इनटू द ब्लड वगैरह। ओके, तो ये देखिए 1:10 डायलेशन हम बाद में इसको दे सकते हैं आफ्टर द 0.1, 0.2, 0.5 ये सीक्वेंस में ऑफ दिस 1:100 के डायल्यूशन का। ओके, तो अनडाइल्यूटेड वेनम भी आप दे सकते हो। इफ नो सीवियर रिएक्शन अकर द यूजुअल डोज कैन बी गिवन बाय इंट्रावीनस एज वेल। ओके, तो इन नॉन एलर्जिक इंडिविजुअली एंटीवेनम इज ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेट आईवी और इंट्रावीनस रूट। ओके, तो अगर सेंसिटिविटी टेस्ट अगर निगेटिव होता है तो डेफिनेटली यू हैव टू डिजोल्व द एंटीवेनम इन डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सलाइन एंड एडमिनिस्टर द एप्रोप्रिएट डोज एज एन इन्फ्यूजन इन 500 ml ऑफ अ सलाइन एट अ 15 to 20 ड्रॉप पर मिनट। ओके, द रेट कैन बी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज सो दैट इन्फ्यूजन कंप्लीट इन 1 to 2 आवर। तो डोज देखिए, डोज ऑफ एंटी स्नेक वेनम तो बिगिन विद 8 to 10 ml आपको विगेट करना है, मतलब 8 to 10 ml ऑफ एंटी स्नेक वेनम वगैरह लेना है। और ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक वायल कितना मिलेगा 10 ml मिलेगा, तो डेफिनेटली 10 वायल कितना रहेगा 100 ml ऑफ NS में रहेगा। तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन एक आई विल रिपीट अगेन कि डेफिनेटली एक वायल जो है 10 ml में आपको डिसॉल्व कर रहे हो तो एक वायल है तो 10 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर में आप क्या कर रहे हो डिसॉल्व कर रहे हो, फिर डायल्यूट कर रहे हो, फिर रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, अभी 10 वायल लेना है क्योंकि यूजुअल डोज है। नॉर्मली एंटी स्नेक वेनम की थेरेपी हम 8 to 10 वायल भी देते हैं और कभी कभी तो ये यू कैन से 13 to 40 वायल भी चले जाता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ दैट पेशेंट। तो 8 to 10 वायल से हमें बिगिन करना है। तो 10 वायल जो रहेगा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कितना नॉर्मल सलाइन रिक्वायर है यहाँ पे, आई विल रिक्वायर अ काइंड ऑफ यू कैन से 100 ml। ओके, तो 100 ml NS आई रिक्वायर हियर, तो 100 ml सोल्यूशन बनेगा और काइंड ऑफ यू कैन से 1 मिनट में 1 ml यू कैन से 20 ड्रॉप पर मिनट हम क्या करेंगे फर्स्ट एक ml मीन्स 20 ड्रॉप। ओके, तो 20 ड्रॉप की रेट में हम क्या करेंगे पेशेंट को क्या करेंगे ड्रिप वाइज हम क्या करेंगे उसको स्टार्ट कर देंगे।
तो ये काइंड ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ एज वगैरह हमें ये 8 to 10 वाले ये फिक्स डोज है इनिशियली हमें स्टार्ट करना ही रहता है. अगर छोटे से चाइल्ड रहेगा अगर उसको भी स्नेक बाइट किया जाए तो डेफिनेटली 8 to 10 वायल भी हम वहाँ पे उसको देना पड़ेगा. ओके, तो आफ्टर द इन्फ्यूजन हैज़ बिन कंप्लीटेड चेक द इम्प्रूवमेंट. अगर नहीं इम्प्रूवमेंट वगैरह आते तो डेफिनेटली यू हैव टू अगेन गिव द एडिशनल 5 to 8 वायल. ओके, तो a final round of 5 to 8 oil can be administered in the continuing the absence of the improvement. Okay, so a final round of 5 to 8 oil can be administered in the continuation of the absence of the improvement. So you have to continue your the anti-sanguinum treatment if you not found any you can say absence of treatment. If a total 25 to 30 oil have been administered without much improvement, further antivenom therapy is unlikely be too helpful and must be stopped there. Okay, एंड फर्दर आपको मेजर वगैरह ये आपको लेना है. रेस्पिरेटरी सपोर्ट जिसको हमने एंटीस्विंगनम हमने दे दिया है, और एंटीस्विंगनम नॉर्मली 8 to 10 वायल या फिर 15 वायल नॉर्मली जाते हैं. जो फीचर्स होते हैं ना नॉर्मली डिसअपियरेंस स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट जिसके डिसअपियरेंस हो रही है ना सिम्टम्स को, तो यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट. रेस्पिरेटरी सपोर्ट देखना है. ये देखिए, तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको पर्टिकुलर जो एंटीस्विंगनम हमने 25 to 30 हमने वायल दे दिया, बट उसको भी वो पर्टिकुलर जो एंटीस्विंगनम था उसको सूट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव द रेस्पिरेटरी सपोर्ट और वेंटिलेशन इलिपेटिक के बाइट के केस में, हीमोडायलिसिस इन वाइब्रेटिक के बाइट के केस में. ओके, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द डोज ऑफ एंटीवेनम इज द सेम फॉर चिल्ड्रन एज वेल. एंटीवेनम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंटीवेनम इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसीज एज वेल. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो एडवर्स रिएक्शन एनाफिलेक्सिस वगैरह हो सकता है. यू हैव टू ऑलवेज कीप एड्रेनालिन विथ यू. ओके, लोडेड रेडिन may need by chance anaphylaxis of antivenom happen in the body. Okay, तो टू किल वेनम एट टिश्यू लेवल यू हैव टू गिव द इन एलिपेट के केस में आपको नियोस्टिगमिन वगैरह देना है. नियोस्टिगमिन एट्रोपिन थेरेपी आपको देना है अलॉन्ग विद दैट एंटीस्नेक वेनम. ओके, इन वाइपर के केस में आपको फाइब्रिनोजन ट्रांसफ्यूजन देना है अलॉन्ग विद दैट हिपेरिन आपको देना है. ओके, अलॉन्ग विद दैट एंटीस्नेक वेनम. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट द लास्ट फेज ऑफ द टुडेज क्लास. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल गिव you can say medication. तो give immediate injection of tetanus toxoid of 1 ml. ओके, इंट्रामस्कुलर आपको देना है. नोवाल्जिन आपको ये पर्टिकुलर इंजेक्शन देना है, इमीडिएटली देना है. आफ्टर दैट टैबलेट एविल देना है, क्योंकि काइंड ऑफ यू कैन से हिस्टामाइन वगैरह की जो रिलीज हुई रहेगी वो उसके करते हैं सबसाइड करते हैं. तो टैबलेट एविल TID 3 डोज का हम करेंगे. टैबलेट डायजेपम हमें देना है. नॉन सिडेटिंग नॉन सैलिसाइटिक एनाल्जेसिक जो होता है ना हमारा पेन किलर जो होता है ना पैरासीटामोल होता है. टैबलेट एम्पेसिलिन हमें देना है 250 मिलीग्राम काइंड ऑफ QID बेसिस पे देना हमें. इन कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एट बाइट साइड एंड सीवियर पेन यू हैव टू अप्लाई द थ्रोम्बोफोब. ओके, और हिरोडोइड और बैपाविरिन दिस आर द ऑइंटमेंट विच अल्टीमेटली हेल्पफुल फॉर द इन्फ्लेमेशन एट बाइट साइड एंड सीवियर यू कैन से पेन. ओके, तो गिव द टैबलेट सुगारनिल. ओके, इन पैरालिटिक स्टेजेस यू हैव टू इंजेक्ट द एड्रेनालिन. Shock or allergy due to the use of antihistamine, directly you have to give the injection efcorlin. This injection efcorlin is nothing but you can say you are giving the steroids. Okay, these are the steroidal therapy. तो टैबलेट सुगारनिल ये सभी कंडीशन में इन्फ्लेमेशन एट बाइट साइड वगैरह में देना है. अगर ब्लीडिंग वगैरह है तो थ्रोम्बोफोब वगैरह देना है. पैरालिटिक स्टेज में है तो इंजेक्शन एड्रेनालिन आपको देना है 1:10,000 के पर्टिकुलर रेशो में. एलर्जी वगैरह केसेस में यू हैव टू डायरेक्टली गिव द एफकॉर्लिन वगैरह. ओके, तो इन किडनी फेलियर में आपको इंजेक्शन मैनिटोल वगैरह देना है 350 ml आपको डायरेक्टली ड्रिप पे चढ़ा देना है पेशेंट को. ओके, देन अगेन इंट्राविनस आपको इंजेक्शन बेटानोसोल देना है 4 mg का. हीमोडायलिसिस करना है. देन पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह करना है अगर किडनी फेलियर है तो. ओके, अदरवाइज यू विल डायरेक्टली गो टू द नॉर्मल रूटीन एज वेल. तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हीमोरेजिक स्टेज में या फिर वाइपर के बाइट के केस में देना है. इंजेक्शन फाइब्रिनोजन. इन केस ऑफ DIC यू हैव टू गिव द हिपेरिन इंजेक्शन एज वेल. ओके, इन रेस्पिरेटरी पैरालिटिक स्टेज यू हैव टू गिव द intermediate positive pressure breathing or mechanical ventilation is also required in some cases as well. Okay, तो artificial ventilation is also required. fatal period वगैरह जो है इन कोबरा स्नेक बाइट विद इन फ्यू आवर पेशेंट की डेथ हो सकती है इफ वी नॉट ओबे द प्रॉपर रूल्स. ओके, नॉट इमोबिलाइजिंग द बाइट साइड, तो डेफिनेटली इन फ्यू आवर्स पेशेंट में किल. वाइपर वगैरह में द पर्टिकुलर पॉइजन मे रिसाइड इन द बाइट साइड फॉर अ सर्टन एक्सटेंट. तो इन सम डे वाइपर में यू कैन से काइंड ऑफ किल वगैरह हो सकता है. फैटल डोज जैसे मैंने आपको बताया कॉबरा में 15 मिलीग्राम होती है, रसल वाइपर में 14 मिलीग्राम है, एंड स्नेक बाइट में नॉन टॉक्सिक ये जो हमारे रहते हैं
तो दिस इज यू कैन से फैटल डोज वगैरह. ओके, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में यू शुड नो कि इट इज एक्सीडेंटली हैपन. नॉर्मली बहुत ही रेयर होगा. पहले के लोग होमिसाइडली किल करते थे, बहुत ही एक्सीडेंटली ये नॉर्मली होता है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में. ओके, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में साइन ऑफ इनिमिनेशन आपको मिलेगा. 2 फैंग मार्क्स आपको इजीली मिलेगा. हेड टू टो आपको सर्च करना है फॉर फैंग मार्क्स. ओके, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में 2 फैंग मार्क्स आपको मिलेगा. 1 सेंटीमीटर आपको अल्टीमेटली डीप रहेगा कोबरा अगर हुआ रहेगा तो. 2 सेंटीमीटर डीप बाइट हुआ रहेगा अगर वाइपर रहेगा तो. ओके, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, डिस्कलरेशन एट बाइट साइड आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में मतलब बाइट करने की वजह से काइंड ऑफ पर्सन की डेथ हो गई है. एंड नाउ यू हैव टू रूल आउट कि इसकी डेथ किसकी वजह से हुई है, कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ और यू कैन से मोड ऑफ डेथ. यू हैव टू रूल आउट. तो पूरी बॉडी आपको काइंड ऑफ एग्जामाइन करना है. अगर फैमिली अगर बताएंगे कि काइंड ऑफ बाइट वगैरह या फिर ऐसा कुछ चांसेस हो सकते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू एग्जामाइन द होल बॉडी ऑफ दैट पर्सन. तो 2 फैंग मार्क्स वहाँ पे अगर रहेगा तो उसकी डीपनेस हमें देखने की कॉमन कोबरा वगैरह से हुई है कि वाइपर से हुई है. तो 2 सेंटीमीटर डीप बाइट हो रहेगी तो वाइपर रहेगा. इन्फ्लेमेशन अगर ये सभी रहेगा तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि ये वाइपर बाइट का केस है. ओके, तो इन न्यूरोटॉक्सिक स्नेक पॉइजन में डेथ इज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलर. एंड इन हीमोटॉक्सिक स्नेक के पॉइजन में definitely death is due to the mainly the hematoma in internal organ like in pleural cavity, abdominal cavity or urinary bladder or intestine. तो these are the you can say in neurotoxic snake poison में death is due to the respiratory failure. ओके, एंड हीमोटॉक्सिक स्नेक पॉइजन में सजेस्ट वाइपर वगैरह जो है, रसल वाइपर, पेट वाइपर और जो सॉस्केल वाइपर है, डेथ इज ड्यू टू द मेनली द हीमोटोमा इन इंटरनल ऑर्गन लाइक इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल डिफ्यूजन, एब्डोमिनल कैविटी और यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन वगैरह में क्या होता है यहाँ पे आपको हीमोटोमा फॉर्म मिलेगा. ओके, इन्फ्लेमेशन आफ्टर द डाइसेक्टिंग द बॉडी, आफ्टर द गिविंग द आई इंसिजन टू द बॉडी, डेफिनेटली यू विल फाइंड दिस हीमोटोमा इनटू दिस कैविटी. ओके, ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नोटेड होगा. लिम्फेडेनोपैथी यहाँ पे आपको क्लियर कट ऑब्जर्व मिलेगा. नॉट टू डू ड्यूरिंग द, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेस क्लास, यू कैन सी हियर. नॉट टू डू ड्यूरिंग द स्नेक बाइट मैनेजमेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया में बहुत सारे लोग इलिटरेट पीपल्स होते हैं एंड दे आर डूइंग द नॉट डूइंग थिंग्स. ओके, तो अप्लीकेशन ऑफ टाइट टॉर्निकेट आपको नहीं टाई करना है. कॉटराइजेशन या फिर इंसिजन या फिर सक्शन ये ऑलवेज कॉन्टेंडिकेट करना है. मल्टीपल डीप इंसिजन थ्रू द बाइट साइड. ओके, सक्शन बाय माउथ, वैक्यूम पम्प और सिरिंज वगैरह आपको नहीं करना है. ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंजीरियस सब्सटेंस सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, फिनोल वगैरह आपको ओवर द बाइट साइड यू डू नॉट ओके अप्लाई देयर. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह अगेन यहाँ पे नहीं करना है. एप्लीकेशन ऑफ आइस या फिर क्रायोथेरेपी ये नहीं करना है. एंड यूज़ ऑफ हर्बल, फोक और आयुर्वेदिक मेडिसिन और रेमेडीज ये आपको नहीं करना है. तो बहुत सारे रहते कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह या फिर रेमेडीज़ वगैरह ये पेस्ट लगा लेंगे या फिर ये स्वरस वगैरह लगा लेंगे, ये जूस वगैरह अप्लाई करेंगे तो जो बाइट होगा डेफिनेटली वो सबसाइड जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं होता. यू ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेट दिस यू कैन से पॉइंट्स. ओके, ड्यूरिंग द you can say during any management or you have to aware the anyone or any patient by doing this. Okay, so that is all about our you can say classification of snakes, their clinical features. There is a sign and symptoms by that particular snakes, and after that if they bite then what will be the management of that. Okay, चल भाई.